So making root 3 is clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. So how do we make root 3? पहले root 2 वाली ही मेथड फॉलो करते हैं. 0 मार्क किया, 1 2 1 पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया. परपेंडिकुलर शुड बी ड्रॉन बाय द मेथड. ओके, आई एम मेकिंग इट दिस वे. ये जस्ट परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं, बाकी जैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे. एंड विल मेक दिस डिस्टेंस एज 1 यूनिट. This is also 1 unit, this is also 1 unit. So this is root 2. Suppose this point is A, this is B. So OB is root 2. Again making a perpendicular here. Okay. This is 1 unit. And joining this O and D. Now OD is root 3. This, because this also by Pythagoras theorem you can prove. Okay. So, and we can make an arc here this way. This is root 2, this is root 3. Okay. Suppose root 5 plot करना है. Suppose we have to plot root 5. Okay. So उसके लिए क्या करेंगे? First of all we'll make a line. Okay. 0 1 2. Okay. इस 2 वाले पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. 2 वाले पॉइंट पे we'll make a perpendicular by making one arc, making a cut here, making a cut here. From this 2 points, making a cut here, making a cut here, and this is actually perpendicular at this point. 1 minute. Okay, let me draw it properly. So when you will draw with scale, you will have no problem. Okay. Okay. After making perpendicular, we'll make a arc of 1 unit. 1 unit का arc बनाएंगे. Okay. And we'll join this point and this point. ये तो होगा 1 unit perpendicular और base कितना है? 2 unit. Okay. Suppose this is A, this is B. So OA square can be written as OB square plus AB square. OB हमने कितना लिया था? 2 unit. AB कितना लिया? 1 unit. 2 square is 4, 1 square is 1. So OA square is 5. OA. So we can write as OA can be written as root 5. root 5. ठीक है. तो अब root 5 का हमको distance पता चल गया. We'll keep fixed end of compass here. Fixed end of compass will be kept here. The pencil side will be here, and we'll mark this. We'll measure this, and we'll make an arc this way. This point is root 5. Yes, ma'am. ठीक है. This is how we'll plot root 5. आ जाएगा ये? यशवी, is it clear? यस मैम. रूट 5 के लिए 2 पे बनाना पड़ेगा हमेशा. हाँ, 2 पे बनाएंगे. 3 से भी प्रोसीड कर सकते हैं. एक्चुअली ये जो हम 3 पे बना रहे थे, अब हमने ऐसे बनाया तो ये रूट 3 ऑब्टेन हो गया. अब यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर बनाओगे, 1 यूनिट का लोगे तो हमको ये 4 मिल जाएगा. रूट 4. रूट 4 मतलब 2. Again making one perpendicular and joining this will be root 5. So it will be very complicated method. You can use one simple method also. क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. ठीक है. And Yes, ma'am. 1 is 5. So this we are using. हमने base 2 ले लिया और perpendicular 1 ले लिया. Okay. So we Yes, are ma'am. getting 5. And this is actually square of this hypotenuse. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Now, any other doubt? Any doubt? No, ma'am. No. ठीक है. Now, real numbers and their decimal expansion. Okay. So we'll see actually decimal expansion of 3 numbers: 10 by 3, 7 by 8, and 1 by 7. Okay. Suppose I divide 10 by 3. Okay. 3 3s are 9. Remainder 9. 1.
decimal point 0, 3, 3s are 9, again reminder 1, 0, 3, 9, 1 and this will continue. अब ये ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है, हमेशा रिमाइंडर 1 आता रहेगा and it will go this way only. So I can write 3.333 dot 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 dot. Clear है? Yes, ma'am. अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, ओके, इफ आई डिवाइड 7 by 8, 0.8 8s are 64, 6, 0, 8 7s are 56, 4, 0, 8 5s are 40, this. Okay, so if I divide 7 by 8, I am getting remainder 0. ठीक है, जब हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे थे हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा था, बार बार 1 1 1 1 मिले जा रहा था. ओके, नेक्स्ट 1 by 7, if I divide 1 by 7, okay, 0.10 1 7 3 0 7 4s are 28 2 0 7 2s are 14 6 0 7 8s are 56 40 7 5s are 35 5 0 7 7s are 49 1. ओके, अब हमको फिर से 1 मिलने लगा. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल रहे थे, आई एम जस्ट समराइजिंग कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल रहा था 1 1 1 1, यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिले 6 मिला सबसे पहले, फिर 4 मिला, फिर 0. यहाँ पे रिमाइंडर मिले सबसे पहले मिला 3 2 3 2 6 4 5 1 और फिर से 3 2 6 4 5 1, फिर से यही मिलेंगे. ठीक है, तो नाउ वन ऑब्जर्वेशन वी कैन सी. ठीक है, दो टाइप के डिवीजन हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर्स 0 बन जाए, either रिमाइंडर्स बिकम 0. ओके ओके, या फिर रिमाइंडर्स स्टार्ट रिपीटिंग. या तो रिमाइंडर 0 बनेंगे या फिर दे विल स्टार्ट रिपीटिंग. जब रिमाइंडर 0 बन जाते हैं तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, एंडिंग. ठीक है, तो terminating decimal expansion means the decimal expansion which has the end. If they start repeating, okay, so they are what type of decimal expansion? Non-terminating and but repeating. okay, or recurring, दोनों बोलते हैं उसको. ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि कोई भी फ्रैक्शन है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा. ठीक है, अब नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे देखें 1 डिवाइड बाय 7 करते हैं हम. व्हेन वी डिवाइड 1 बाय 7, व्हाट वी आर गेटिंग इज 0.142857 एंड देन इट विल रिपीट. इस बार का क्या मतलब है कि अब ये सारे नंबर्स रिपीट होते रहेंगे. इस बार को नहीं लगाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 142857 142857 ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये किसके बाद रिपीट करेगा. ठीक है, तो हमको उसके लिए देखना है डिवाइजर क्या है. ठीक है, क्या देखना है, डिवाइजर क्या है. अगर डिवाइजर 7 है तो जो नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रिंग्स होंगी वो हमेशा 7 से कम होंगी. जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इफ आई एम डिवाइडिंग 1 by 7, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, 6 digits are repeating. So always number of repeating digits will be less than number of which is at the divisor. Are you getting what I am saying? Yes, ma'am. Okay. अब
तो दो टाइप के नंबर्स हैं, either it will be terminating or if it will be non-terminating then they will be repeating. Okay, this both are rational numbers. Okay, this both are rational numbers. So rational numbers are of two types. Rational numbers are of two types, either they are terminating rational numbers or non-terminating. And if they are non-terminating then they will be repeating. Okay, non-terminating, recurring or repeating. Okay, अब सपोज कि हमको 1 minute, one question I want to ask. सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 डिवाइड बाय 17, ठीक है, हमको इसका डेसिमल एक्सपांशन ऑब्टेन करना है, तो हमको कितने डिजिट्स तक डिवाइड करना पड़ेगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में? मैम अबाउट 8 to 9. नो, मैंने बोला था ना डिवाइजर पे डिपेंड करता है. अगर डिवाइजर 17 है तो नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रिंग्स मैक्सिमम कैन बी लेस देन 17, मतलब 16 हो सकती है. जैसे 1 डिवाइड बाय 7 था तो वो क्या था 0.142857, तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे 6, ठीक है. तो इफ डिवाइजर इज 7 द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इन द स्ट्रिंग can be less than 7, so it can be 6 or even less than that. तो 1 डिवाइड बाय 17 है तो इसका हमको डेसिमल एक्सपांशन ऑब्टेन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा और मे बी 16 डिजिट्स कैन कम. Okay, this will come in exercise, don't worry, I'll explain it again that time. ठीक है. अब सपोज हमारे पास एक नंबर है 3.14267, ठीक है, इसको हमको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? मैम टर्मिनेटिंग मैम. टर्मिनेटिंग है. यस यशवी, व्हाट डू यू से, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? मैम टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्यों है? मैम क्योंकि मैम आगे मैम खत्म हो गया ये खत्म हो गया है, इसमें कोई डॉट 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 नहीं आ रहा है. जिनमें कोई भी डॉट नहीं आएगा वो टर्मिनेटिंग है. यस मैम. ठीक है, या तो डॉट आएगा या फिर बार आएगा, या तो 3.33 ऐसे लिखो डॉट 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 या 3.3 बार, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कहीं पे रुक नहीं रहे, कहीं पे खत्म नहीं हो रहे. यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज एंडिंग, सो दिस इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. ओके, नाउ इफ आई हैव टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, हाउ कैन आई राइट इट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? Just remove this decimal point and write 1, 2, 3, 4, 5 zeros in denominator. This is in form of P upon Q. ठीक है. ओके मैम. यस मैम. जैसे 1.3 है, इसको P upon Q के फॉर्म में लिखना है 13/10, that's it. तो टर्मिनेटिंग जो रैशनल नंबर्स है उनको P upon Q के फॉर्म में लिखना बहुत इजी है. Just remove that decimal point and put the zeros in denominator. ये बात समझ में आई? यस मैम. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को P upon Q के फॉर्म में लिखना है तो we have to just remove the decimal point and put number accordingly in the denominator, that's it. Okay, suppose I have a non-terminating number now. Suppose I have 0.3 bar. Okay, I have to write this in form of P upon Q. Okay, write in form of P upon Q. Okay, so for this we have one specific method. ठीक है, सबसे पहले जब हमको ऐसे नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है तो I'll write first step should be x equals to 0.333 डॉट 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 डॉट, कितने भी 3 लगा सकते हैं फर्स्ट स्टेप में.
क्लियर है मेरी वॉइस एंड एवरीथिंग इज Yes, क्लियर ma'am. और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैम ये है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये किस चीज पे डिपेंड करता है? Ma'am, मैम number. ऊपर वाले नंबर पे। किस पे? मैम ऊपर वाले नंबर पे। ऊपर वाले नंबर पे कैसे? मतलब जैसे 1.27 बार है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Ma'am. 10 से। किसमें 10 से? Ma'am. अगर 1.27 बार है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? या मैम 100 से। 1.309 बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100. मैम Ma'am, 1000। 1000. So the important thing is how many digits are repeating. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है 3, यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है 2 and 7, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है 3, 0 and 9, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, so this is actually a point of confusion for many students, so you should always remember this. Now इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, मल्टीप्लाई बाय 10 इन LHS एंड RHS। ओके, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अब 3.333 ये इनफाइनाइट थ्रीज है, तो आई विल जस्ट राइट 3.333। 3.3. कितने 3 लिखेंगे हम? जितने डिजिट्स यहाँ हैं उतने ही डिजिट्स यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है तो हम कितने भी लिख सकते हैं। ये दूसरा स्टेप होगा, मेक इट इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। Yes, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मतलब 10x माइनस x इक्वल्स टू Yes. 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 3.333 डॉट डॉट Ma'am. माइनस 0.3 क्या? Direct 3. मैम हाँ 3/9 3 आ जाए। आंसर। हाँ, तो 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/9 और 3 x by 9. इक्वल्स टू 1/3। दिस 1 इज by द 3. आंसर। Yes, ma'am. क्लियर है? मैम जो Yes, ma'am. मैम जो मेरे को ना अभी थोड़े दिन पहले ये वाली टीचर ने किसी टीचर ने पढ़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसा नहीं बताया था कि अगर एक नंबर है तो 10 लगेगा, 2 नंबर है तो 100। उन्होंने तो बोला मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 10 से नहीं होता तो 100 से करो, 100 से नहीं होता तो 1000 से करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर ये है हमारे पास 1.2333 ऐसा है तो 1.23 बार है बेसिकली ये, तो डिजिट्स तो 1 ही रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 1.23 बार है तो 2 और 3 दोनों रिपीट हो रहे हैं। 1.7097 बार है और 7 तो फिर से आ गया, तो 709 बार है तो 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उस पर डिपेंड करता है किससे मल्टीप्लाई करना है। ओके मैम। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 we are doing 7, 6 and 7 we have already done. We have to write 1.27 bar in form of P upon Q. Okay. So first step is x equals to 1.2727 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमको नंबर ऑफ डिजिट्स इस वाले स्टेप में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर 3 है तो इस वाले डिजिट में भी, इस वाले स्टेप में भी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट सेम ही रखना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके यस मैम। ओके, नाउ मल्टीप्लाई by 100 both sides, so 100x equals to, it is 127.2727 dot 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 dot. Okay, name this equation 1, name this equation 2, equation 2 minus equation 1, 100x minus x equals to, अब इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.2727 डॉट 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 डॉट।
7 and 7, this all will be 0. 127 minus 1, 126. So this is 126. So 99x equals to 126. X equals to 126 by 99. Is it clear? Ma'am, why it is written 126? देखो ये subtract करो 127.27 minus 1.27. Yes, ma'am. मैम ये कटेगा ना 3 की टेबल से? हाँ 3 से कट कर सकते हो. Yes. Even you can cut by 9. 11. Yes, ma'am. 9 ones are 9. 36 4. So 14 by 11 is the answer. Yes, ma'am. Okay. Okay. अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं. एक्चुअली चेकिंग इज अ लेंथी प्रोसेस बिकॉज यू हैव टू अगेन डिवाइड. बट 14 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तुम तो तुमको यही नंबर मिलेगा. ओके मैम. तो मैम Okay. ऐसे एग्जाम करना जरूरी है साइड में? नहीं यू डोंट हैव टू. जस्ट फॉर अगर कोई डाउट हो रहा है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है और टाइम बचा है देन यू शुड चेक. ओके मैम. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल 9. Express 0.235 in form of P upon Q. Okay. मैम 1000 तो क्यों? कितनी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ? ओके मैम सॉरी 100. So x equals to 0.235 dot multiply by 100 both sides. Okay. So 100x Ma'am, equals I have to checked the previous answer. okay. 235. Okay. It is 235. Okay. Now this is equation 1. This is equation 2. 2 minus 1. So 100x minus x equals to 23.53535 minus 0.23535 dot. So it is 23.53535 minus 23/100. Okay. So it is 23.3 is coming. 99x equals to 23.3. Are you getting this? So x equals to 23.3 upon 99. When we'll remove this decimal point, it is 233 upon 990. Upon 9. Yes, Yashvi, any doubt? No मैम. ये सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स. इसमें चेक कर लेना तुम. ये नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा इक्वल ही लेना दोनों साइड. डॉट का मतलब है बहुत सारे डिजिट्स हैं. हमको जितनी चाहिए उतनी हम ले सकते हैं. तो ऑलवेज टेक इक्वल. दैट विल गिव यू करेक्ट आंसर. यस मैम. ओके. यस. So now your homework I am writing here. Homework is question number 3, exercise 1.3. Okay. Then question number 4 also. Question number 3, question number 4 and question number 1. 1, 3 and 4 are homework.